हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का यानी 9वीं कक्षा के लिए जो है सामाजिक विज्ञान। ये टॉपिक कई माध्यमिक एग्जाम के व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम कुछ ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतर्गत होगा। ठीक है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि एग्जाम के समय मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, तो वो जो है वादा पूरा करने का समय है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, व्हाई आर द फॉरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड द एनवायरमेंट अराउंड देम, एक्सप्लेन। You know that there is a come to the question is the most important. Why are the forests very important to the human beings and the environmental around them, to explain? There is a most important question, and the answer here, for the following reason forests are very important to human beings and environment around them. There is important first point here. The forest is a modified local climate. Forest modified a local climate, control soil erosions and regulate our stream flow. There is an important point here. The first, forest modified to local climate, control soil erosion and regulate stream flow. That is important here. And the second point, forest support a variety of industries, provide a livelihood for many communities, and after is a panoramic and scenic view of creation. There is an important here. You understand? The forest is a support of variety of industries, provides the livelihoods for many communities, and offer a panoramic and scenic view for recreations. That is important. And the next point here, third here, the forest control wind force and temperature and cause a rainfall. There is a 3-factor control for the forest. Is important. The forest control through wind force, temperatures and rainfall. There is possible only for the forest. The control wind force and temperature and cause a rainfall also. And fourth point here, they provide to humans to be soil and shelter to the wildlife. There is important here. Forests provide to the wildlife of shelter. And the fifth point here, the forest help us to keep our environment clean and pollution free by the preventing dust from entering into the air and absorbing carbon dioxide and release fresh oxygen. I repeat again, is this fifth point here. Forest help us to keep our environment and clean and pollution free by the preventing dust from entering into the air, absorbing carbon dioxide and releasing a fresh oxygen. And sixth point is also important here. Forest stop rainwater from the flowing fast. Is important. They stop to the flowing of fast raining water. Forest stop to the rainwater from flowing fast and hold it so that could be a percolate down to the and reach the ground water level. Their water table. The forest stop to the rainwater from flowing too fast and hold it so that it could be percolate down to the increase. There is a ground water level is a water table. अगला 9वां क्वेश्चन जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिस पे हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है कि मनुष्य और उसके आसपास के पर्यावरण के लिए वन महत्वपूर्ण क्यों है, व्याख्या करना। देखिए, मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ इस बात पे, इस क्वेश्चन पे। तभी मैं कहता हूँ ना कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिए ना, तो 100% जो है आपको पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम हर एक बात पे यहाँ विस्तार पर चर्चा कर रहे हैं। वही क्वेश्चन आगे आता जा रहा है। तो इसमें क्वेश्चन यही है कि मनुष्य और उसके आसपास के पर्यावरण के लिए वन महत्वपूर्ण क्यों है, मनुष्य के लिए जो है वन इतने महत्वपूर्ण क्यों है। तो क्यों है तो आपको पता ही है, इसके बारे में अब अधिक मुझे डिस्कस करने की आवश्यकता भी इसमें नहीं होगा कि वन निम्नलिखित कारणों से मनुष्य और उसके आसपास के पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात यही आती है कि वन स्थानीय जलवायु को संशोधित करती है। देखिए,
वन जो है वन रहेगा तभी जलवायु जो है कंट्रोल में रहेगा, और जलवायु बिगड़ेगी ही तो इंसान के जीवन भी तहस नहस हो जाएगा। तभी तो आप देखते ही हो, कहीं बाढ़ आती है तो कहीं तूफान आती है, ठीक है। तो ये कारण क्या है? क्योंकि उस क्षेत्र के जो है वन्य जीवन पे काफ़ी लोगों ने प्रभावित किया है, उसको नष्ट किया है, इसलिए जो है कहीं बाढ़ आती है तो कहीं तूफान आती है, और इसका प्रकोप किसको सहना पड़ता है? इंसानों को ही सहना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि वनों की संरक्षण करना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात आती है मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करती है। वन जो है आपको पता है कि जो मिट्टी बह जाती है उसको रोक लेती है। वन जैसे कि मान लीजिए एक हमारा सर होता है, अगर बिना बाल के हो तो अगर हम पानी रखते हैं तो फटाक से बाहर निकल जाता है। अगर वही हमारा बाल होगा तो हम तेल रखेंगे तो थोड़ा सा नीचे तक आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो वही बात यहाँ पर आ जाता है। एक्सपेरिमेंट भी बना सकते हो आप। तो जो पेड़ पौधे होते हैं पानी को भी रोकते हैं, ठीक है, और मिट्टी के कटाव को रोक देते हैं, और मिट्टी कटाव हो जाने से पेड़ पौधे ढीले पड़ जाएंगे और गिर भी जाएंगे। इसलिए पेड़ पौधों जो होते हैं लगाना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करती है और धारा प्रवाह को भी नियंत्रित करती है। पानी की धारा को जो है तीव्र होने से बचाती है, और तीव्र रहेगी तो आपको पता है बाढ़ का जो है बहुत बड़ा प्रकोप सहना पड़ेगा। तभी देखते हो कि कोसी नदी के आसपास देखा जाए तो बहुत कम जो है पेड़ पौधे हैं, और जिसके कारण हर साल जो है वहाँ पर बाढ़ आती ही आती है, और ये बहुत तेज़ होती है क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है कि पानी को जो है गति को धीरे कर सके। तो वहाँ के लोगों को जो है आए दिन कहते हर साल जो है उनको मुसीबत का सामना करना ही पड़ता है बरसात के मौसम में। तो अब क्या कहें, लोग समझदार ही नहीं बन रहे हैं, सरकार इस पर कोई कदम ही नहीं उठा रही है। पेड़ पौधे जितने सरकार लगा देगी बाढ़ पे नियंत्रण बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। वन विभिन्न प्रकार के उद्योगों का समर्थन करती है। देखिए वन ही के कारण जो है कई प्रकार के उद्योग जो है फला फूला है, क्योंकि वन से ही जो है उनको कच्चे पदार्थ मिलते हैं। कई समुदाय के लिए आजीविका प्रदान भी करते हैं, और मनोरंजन के लिए जो मनोरम एवं सुंदर दृश्य भी पेश करते हैं। आपने देखा ही होगा कि वन में जो है बहुत से फिल्म जो है फिल्माए जाते हैं और उनके दृश्य लिए जाते हैं, कितने सुंदर दृश्य होते हैं और हम देख के ललायित होते हैं। तो ये वन के कारण ही संभव है। कहते हैं नेचर ने जो दिया है हमें उसको संरक्षण करके रखना हर एक इंसान के दायित्व हो जाता है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो वन जो है पवन बल और तापमान को नियंत्रित करते हैं। देखिए बहुत तेज़ अगर हवा चलती है पेड़ पौधा रहता है तो वो उसको रोक लेती है, यानी पवन जो बल को भी रोकती है और तापमान को भी नियंत्रित करती है। मान लीजिए जिस क्षेत्र में पेड़ पौधे लगे होते हैं वहाँ पर धूप की रोशनी जो है हम तक बहुत कम पहुँच पाती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है छाया हो जाती है पेड़ पौधों के कारण। तो पेड़ पौधे जो है हमें तेज़ धूप से भी बचाती है और वर्षा के कारण से भी बचाती है। तो पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो पुराने समय में पेड़ पौधों की पूजा भी की जाती है, और इवन कि अभी भी की जाती है। इसमें पीपल नीम को तो कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो समझ सकते हो ये हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है पेड़ पौधे। चौथे पॉइंट की बात करें तो ये साफ करता है कि ये वन जीवन की मिट्टी और आश्रय के लिए ह्यूमस प्रदान करते हैं। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है कि वे जो है वन जीवन के लिए मिट्टी और आश्रय के लिए ह्यूमस प्रदान करती है। तो आश्रय के लिए ह्यूमस होना बहुत ज़रूरी है, और वन जीवन के लिए मिट्टी देती है। तो ये वनों के कारण ही संभव होता है, क्योंकि वन जो होती है पेड़ पौधे गिर भी जाते हैं तो सर के जो है मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से ह्यूमस वहाँ पर बन जाते हैं। तो पेड़ पौधे कहते हैं जीवित रह के भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और जो है मृत्यु हो जाने के बाद भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं इंसानों के लिए। पाँचवा पॉइंट यही कहता है कि धूल की हवा में प्रवेश करने से रोकता है। देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं अपने पत्तों पर जो है धूल कणों को जो है रोक लेते हैं और इंसानों तक पहुंचने से रोक देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही होता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं, और ये हमारे लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड खतरनाक होती है शायद आपको पता हो, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं और उसको लेके ताज़ा ऑक्सीजन जारी करके वन हमें पर्यावरण को स्वच्छ और जो है प्रदूषण मुक्त रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो पेड़ पौधे देखिए कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है, कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेके ऑक्सीजन आपके लिए जो है देता है। और आपको पता ही है कि ऑक्सीजन के बिना इंसान जिंदा रहना संभव ही नहीं है। तो आप देखिए पेड़ पौधा रहेगा नहीं, ना हमें ऑक्सीजन मिलेगा, ना हम लोग जिंदा रहेंगे। तो पेड़ पौधे है ना मनुष्य के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण। अगर हम 6वें पॉइंट की बात करें तो ये साफ हो जाता है कि वन वर्षा के पानी को
तेज़ी से बहने से रोकता है। यानी जो वन में वर्षा होती है, रेन होता है और पेड़ पौधे होते हैं, तो जो पानी की रफ्तार होती है उसके पेड़ पौधे जो है रफ्तार को कम कर देती है, जिससे क्या होता है तेज बहाव नहीं बहती है पानी, ठीक है। और इसे रोक कर रखते हैं ताकि यह भूजल सतह यानी जल तालिका के समुद्र करने के नीचे रिस सके। यानी ये पानी की जब तक होल्ड नहीं करेंगे तब तक जो है वो धरती में ग्राउंड वाटर का रूप धारण नहीं करेगा। मान लीजिए पानी आया और चलता रहा तो ग्राउंड वाटर तो रिचार्ज ही नहीं हुआ, ग्राउंड वाटर में तो पानी अब्जॉर्ब किया ही नहीं, तो आप प्यासे रह गए। तो वन देखिए कितना महत्वपूर्ण है। तभी त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा कहता है कि वन की संरक्षण कीजिए, वन बहुत ही ज़रूरी है और आपको भी इसको जो है समझना है और सरकार को भी इस बात पे जो है समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करना मत भूलिए। चाहे आपको ये अच्छा लगा, आप क्या राय विचार रखते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, कि कमेंट करने से दोस्तों ये होता है मुझे प्रोत्साहन मिलता है। चाहे मुझे गलती बताइए चाहे सही बताइए, हम दोनों में ही खुश हैं। दोनों बातें हम जो है नोट करेंगे, उस बात को अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि बाद में अगर रिसर्च करिएगा यूट्यूब पे तो शायद ही त्रिपाण सेंटर आपको नज़र आए, क्योंकि उससे पहले जो है आपको दूसरे चैनल नज़र आएंगे और मेरे वीडियो शायद आपको प्राप्त न हो सके। इसलिए जो है त्रिपाण सेंटर बार बार कहता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए।